الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا الہی امت اسلام کے سامان پیدا کر دلوں کے مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر یا الہی جو دل مردہ ہے غافل ہے پنجگانہ نمازوں سے تو اپنی رحمت قدروں سے تو اپنی رحمت قدرت سے ان میں جہان پیدا کر یا الہی مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے یا الہی مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے پھر کوئی حضرت علی جیسا انسان پیدا کر پھر کوئی حضرت علی جیسا انسان پیدا کر اعلیٰ حضرت بولے تو خوب بولے علم جھوم کے بولے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں کہا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور بن دونا تیرا دے دھان سال کا نور کا اور بولتے آیا ہے تیری نسل پاک میں بچہ نور کا بولنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بڑا نور کا اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا آئیے نبی اور آلے نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے پڑے درود پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. ارے آپ نے نعتیں بھی سنی تقریریں بھی سنی سچ بتانا دل لگ رہا تھا نا اے مدینے شریف کی بات ہو رہی اور دل نہ لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ والضحیٰ کا معنی میرے آقا کا چہرہ مبارک واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا کا معنی میرے آقا کی زلفیں مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر ہو رہی ہے آپ بالکل ادھر ہے بھیا پیسے بھی دینے تو حساب مت لگاؤ جلدی جلدی آتے رہو لیکن پیسے مت کرو حساب لے کے کرا رہے تھے 10 روپے تو دیا بعد میں سنو میری بات توجہ سے سنو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے چہرے کے بارے میں ارشاد فرمایا والضحیٰ میرے نبی کی زلفوں کے بارے میں فرمایا واللیل اذا سجا میرے نبی کے سینے کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک میرے نبی کی کملی میرے نبی کی چادر کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل سبحان اللہ بولے عزیزان ملت اسلامیہ میرا نبی لاجواب ہے میرے نبی کا طلبہ لاجواب میرے نبی کا جلوہ لاجواب میرے نبی کا قصیدہ لاجواب میرے نبی کا سینہ لاجواب میرے نبی کا خاندان لاجواب میرے نبی کے دندان لاجواب میرے نبی کی چال لاجواب میرے نبی کی گفتار لاجواب میرے نبی کا سینہ لاجواب میرے نبی کا مدینہ لاجواب. اور اسی مدینے کی بات سنو ایک روز کی بات ہے سنہری جالیوں کو ایک بچہ پکڑ کے گھر بیٹھا ہے کھڑا ہے اور رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہے اے لوگوں زاروں کا تاپ رو رہا ہے اور رو کر کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اے یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے یا رسول اللہ 3 روز سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اللہ اے لوگوں توجہ سے سننا میرے مصطفیٰ کی گنبد کی جالی کو تھام کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے پانے سے ہوں کھانا نہیں ملا ہے. اے لوگوں اب میرے مصطفیٰ کے روزے دیکھ جب یہ عریضہ پیش کر رہا تھا ایک مولانا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا کیا تم نے 3 روز سے کھانا نہیں کھایا؟ جی میں نے 3 روز سے کھانا نہیں کھایا. کہا میرے گھر چل تجھے کھانا کھلا دیا جائے گا تجھے شکم شیر کر دیا جائے گا. اللہ اللہ اب یہ چلتا ہے کہ چلنے کے بعد میں مولانا صاحب کے مکان پہ پہنچے مولانا صاحب نے دسترخوان لگا دیا سامنے کھانا لگا دیا. اب یہ 3 روز سے بھوکا تھا کھانے کا لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا کھانے کے لیے جا ہی رہا تھا. مولانا نے کہا بیٹے تو جلدی سے کھا تیری ماں تیرا راستہ تکتی ہوگی بیٹا جلدی کھانا کھا تیرا باپ تیرا راستہ دیکھتا ہوگا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سے رو کر کہنے لگا مولانا ماں اس کی راستہ دیکھے جس کی ماں ہو باپ اس کی راہ تکے جس کا باپ ہو میرا تو نہ باپ ہے نہ میری ماں ہے میں تو یتیم ہوں. کہا کس خاندان سے ہے؟ کہا
नबी के खानदान से हूँ, खानदान से हूँ, अरे नबी की नस्ल पाक से हूँ। मेरे मुस्तफा के दीवानों, जब बच्चे ने इतना कहा, मौलाना ने कहा बेटा तू यहाँ से चलना, और चलने के बाद में तो हमारे मुल्क चल, और हमारे मुल्क में लोग तुझे इज्जत देंगे, हमारे मुल्क में लोग तुझे दौलत देंगे, हमारे मुल्क में लोग तुझे शरबत देंगे, हमारे मुल्क में तुझे खाना भी अच्छा मिलेगा, तुझे पीना भी अच्छा मिलेगा, तुझे एयर कंडीशन रूम मिलेंगे, मकानात अच्छे मिलेंगे, तुझे कारों में घुमाया जाएगा, तुझे कानों पर बैठा लिया जाएगा, तुझे पर्दों पर उठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तू सैयद है। अब इसने इतना सुना, लुत्फे को हाथ से दस्तरखान पे रखा, मौलाना का हाथ पकड़ा और गुंबद खजरा के साए के नीचे लेकर गया। अब बताइए, जिसने 3 रोज से खाना ना खाया हो, अगर सूखी रोटी देती जाए तो वो किसी की बात ना सुनेगा, बल्कि रोटी खाने अपनी जो है उसमें तरजीह देगा। लेकिन ये गुंबद खजरा के सामने आया और आने के बाद में इसने कहा मौलाना अब बताओ तुम्हारे मुल्क में लोग मुझे क्या देंगे? कहा इज्जत देंगे, कहा हाँ इज्जत देंगे, कहा दौलत देंगे, हाँ दौलत देंगे, कहा सरहद देंगे, हाँ सरहद देंगे, तुझे खाना देंगे, हाँ खाना देंगे, तुझे मकानात मिलेंगे, हाँ मकानात मिलेंगे, कहा सब चीज देंगे, जब वहां पे गुंबद खजरा मिलेंगे। क्या बात है, जानम फिदाए हैदरी या अली या अली। अरे अली का जिक्र मुकद्दस, नाम आ गया तो शेर सुन लो, अली का जिक्र मुकद्दस हार देता है, और अली का बुग़्ज़ सीना चेहरा बिगाड़ देता है, और अली के जिक्र को अदना समझने वाले अली को वो है जो हाथ से खैबर उठाड़ देता है। हमारे शायर इस्लाम सलमान रज़ा ने नवाज दिया है, इनकी जो पैसा होता है ये समझ लीजिए मेरी, ये मुझे अंदाजा हो गया कि मैं तकरीर अच्छी कर रहा हूँ क्योंकि स्टेज से मुझे इनाम मिल गया है। आपकी नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? करूँ तकरीर या खत्म कर दूँ? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पिछले साल भी आया था ना तो मैंने बहुत कम तकरीर करी, ऊपर पर्दा नहीं लगाया था, आवाज बैठ गई थी, एकदम से लोग कह रहे करो करो मन के। अगले साल को जिंदा कराया तो इंशाल्लाह पूरी भरपूर तकरीर करूंगा। आज वो मैं पूरी कसर कर देता हूँ, है ना? आप तो तैयार हो? मौलाना लोग तक सुबह को नमाज पढ़ा ली, तुमने टांगे फैला के सो के इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इन्हें तो अजान भी पढ़नी रहती है, इनका मैं ख्याल रखूंगा मैं। आप लोग ज्यादा देर ना, थोड़ी देर समाप्त करें, लेकिन मोहब्बत से करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या गुंबद खजरा भी मुझे मिलेगा? क्या मेरे नबी की सुनहरी जालियां भी मिली? यही तो थे, कहा सुनहरी जालियां देखने के लिए मिलेगी। मौलाना की नजरें झुक गई, कहने लगे बेटे दौलत मिलेगी, बेटे इज्जत मिलेगी, बेटे कार मिलेंगे, मकानात मिलेंगे, अच्छे अच्छे रूम रहने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन नबी का गुंबद ना मिलेगा। तो बच्चा कहता है मौलाना अरे जब गुंबद नबी का ना मिलेगा तो मुझे खाना नहीं चाहिए, 3 रोज नहीं बल्कि सारी जिंदगी रहना भूखा रहना गवारा है, लेकिन नबी का शहर मदीना छोड़ना, गवार गुंबद खजरा को छोड़ना गवारा नहीं। अभी तो मेरे जिंदा इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि तो मुक़द्दस सुन्नियत की जान, कौम के पठान, हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की जान। इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया और उस नबी के गुंबद के बारे में लिखा, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब टैक्सी तो बोले करो जिंदाबाद, क्योंकि अच्छा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहता हूँ मऊ के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। तो नबी
नबी का जिक्र करते हैं और वहां भी कहते हैं क्यों कर रहे हो मोदी के साथ क्यों कहते क्यों कर रहे हो, तुम मर के मिट्टी में मिल गए, मन की मिट्टी में मिल गए। अरे आला हज़रत फरमाते तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमें अपने नबी से इश्क था, हमें अपने नबी से इश्क है, हमें अपने नबी से इश्क रहेगा। आइए मैं आपको और आगे लेकर के चलूंगा, लेकिन पिछले साल में आया था 11वीं शरीफ में, तो हमारे यूसुफ मुल्लाजी साहब कह रहे थे थोड़ा सा वारिस से पाक का जिक्र भी कर दिया जाए। आओ मैं बता दूं मेरे वारिस से पाक की शान क्या है, ये भी सुनो फिर आगे आवाज को खड़ा कर। मतलब मेरे वारिस से पाक से किसी ने पूछा हुजूर ये पीले कपड़े क्यों पहनते हो, ये पीला लिबास क्यों पहनते हो, ये तो मरीजों की अलामत है, ये तो मरीजों की पहचान है, तुम क्यों पहनते हो। वाह वाह वारिस से पाक की शान देखो सुन्नी मुसलमानों। मेरे वारिस से पाक ने इरशाद फरमाया अरे तू पूछता है ये पीले कपड़े क्यों पहना करता हूँ, तो सुन ले तेरे लिए जो है ये पहचान दुनियादार के मरीज की है, लेकिन मैं नबी के इश्क में मरीज हुआ हूँ इसलिए पहनता हूँ। तभी तो शायर कहता है निगाहे फकीर में तो तासीर देखी, बदलती आसारों की तकदीर देखी। अरे जब उनके मता भर देते हैं शाहना जमाना की जोड़ी, मोहताज का नबी आलम है। आओ वाक़िया सुन रहे हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए, मेरे नबी जैसे ही तशरीफ लाए मेरे नबी की जिंदगी बढ़ती रही। ऐलान नबूवत किया 40 वर्ष के बाद में, और आने के बाद में एक मरतबा मेरे नबी वादी से गुजर रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले साहब आ गए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। साहब बहुत अच्छे हैं हमारे, इनके जो है मुझ पर बहुत बड़ा काम है। मुझे तुम पहचानते क्या? कोई भी नहीं जानता था मुझे, तो इन्होंने तो मुझे पहचान कराइए, बताइए। कोई नहीं जानता था, मैं तो रास्तों से गुजर के चला जाता था, लेकिन अगर यह मऊ के अंदर पहचान कराइए तो मुफ्ती साहब ने कराई है। और सीसाने मिल्लत इस्लामिया ये मुफ्ती साहब बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आइए मेरे मुस्तफा वादी के रास्ते से गुजर रहे हैं, तवज्जो से बाकी को सुनना और इंशाअल्लाह अपने ईमान को ताज़ा करना। आगे बढ़ो, मेरे मुस्तफा जैसे ही वादी के रास्ते से गुजरे एक शख्स था, नौजवान शख्स था, जिसका खूबसूरत चेहरा था, हसीन जमील था, बकरियां चरा रहा था और ये वादी में खड़ा था, जंगल के रास्ते पे खड़ा था। उधर से अमीना के लाल का मेरे जाका मदोहा वाला चेहरा लेकर के आ रहे थे, सजावादी सुरभे लेकर के आ रहे थे। मेरे मुस्तफा जैसे ही करीब आए देख करके ये सोचने लगा, दिल ही दिल में कहने लगा यार इतना हसीन जमीन आगे तक मैंने किसी को न देखा, ये मक्का की सरजमीन पे कौन है जो इतने हसीन जमीन है, जो इतने खूबसूरत है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद में कहा यार आप कौन है, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया सुन लो तो सुन लो, अरे तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ, तो उम्मत के गमखार मैं ही हूँ, मदीने का ताजदार मैं ही हूँ, नबियों का सरदार मैं ही हूँ, बेकसों का कस मैं ही हूँ। अरे ऐ लोगों नबी फरमाते हैं जहन्नमियों को जन्नत दिलाने वाला मैं ही हूँ, गुलामी की जंजीरों से आजाद करने वाला मैं ही हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा के जब इतना इरशाद फरमाया कहने लगता है आप मुसलमानों के नबी हैं, कहा लोग आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, कहते हैं मोहम्मद ऐसा करते वैसा करते हैं, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा मुझे यकीन हो गया जिसका चेहरा इतना हसीन जमील है उसका मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा, उसका परवरदिगार कितना प्यारा होगा। ताखीर न कीजिएगा, आप मुझे कलमा करा दीजिएगा और दाखिल इस्लाम कर लीजिएगा। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना लिया। अब दिन गुजरते चले गए, वक्त गुजरता चला गया, टाइम गुजरता चला गया। एक दिन ये आया कि इनका जो खालू था, ये जो जिन्होंने कलमा पढ़ा था, ये यतीम थे, बाप नहीं था, माँ थी, बाप छोटा से थे, तो जो है उनके बाप का इंतकाल हो गया था। अभी अपने खालू के मकान में रहा करते थे, उनकी बकरियां चलाकर अपनी माँ को और अपने शिकम से रोते दो रोटियों का इंतजाम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह आप जैसे ही कह लोगों जब ये एक
मर्तबा उनका खालू करना यहूदी था, नबी से नफरत करने वाला था, नबी को गालियां देने वाला था, नबी से दोष रखने वाला था, नबी से अदावत रखने वाला था, नबी की बगावत करने वाला था। इसने जो है मेरे नबी को हजरत अबू के शाफा के सामने गालियां दे दी, गुस्ताखी कर दी, ऐसे ही गुस्ताखी करी। अल्लाह की कसम हजरत अबू के शाफा सामने खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, ओ खालू आज तो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, लेकिन आइंदा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी न करना। कहा क्यों? कहा मैं भी उनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ, मैं भी उनके कुरान का मानने वाला हूँ, मैं भी मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ। अरे ये सहाबा की ये शान थी, नबी को कोई गुस्ताखी करता तो सामने खड़े हो जाया करते थे। और आज भी जब हिंदुस्तान में नरसिंहानंद सरस्वती जैसा कुत्ता नबी की शान में गुस्ताखी करता है जैसी शख्सियत नामत नामूस रिसालत के लिए उठकर खड़ी होती है और सारी सुन्नियत के हवाले से ये जवाब देते मुफ्ती सलमान हज़री सारे कुफ्र को डंके की चोट पे कहते हैं, जान मानोगे जान देंगे, माल मानोगे माल देंगे, हो सकेगा नबी का किया हुआ चाहो इस्लामिया मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आइए जैसे ही इसने इतना सुना कहने लगा मेरे घर में रहता है, मेरी दुनिया चलाता है, मेरे जो है कहता है मेरी बकरियों से अपना गुजर बसर करता है और मेरी ही बगावत करता है। नबी का कलमा पढ़ दिया, मुसलमानों को नबी का, तुझे पता नहीं कितनी नफरत करता हूँ, तुझे घर से निकाल डालूंगा, दर दर की ठोकरें में खाता फिरता रहेगा, बोल बोल माँ को बाहर रखेगा, मकान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। जब इतना सुना कहा नबी का आशिक ये टेंशन नहीं रहता, रहता है। अरे नबी जो मुख्तारे कायनात है, आला जो मुख्तारे कायनात है, जो पास कुछ रखते नहीं, जो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आज हम उनका दामन पकड़ देते हैं। हम दुनिया की तमन्ना नहीं करते, हमें माल चाहिए, दौलत चाहिए। वालों को तुम भी कभी भी ये ना सोचना हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है, हमारे पास अच्छी बिल्डिंग नहीं है। आका फरमाते हैं अरे गरीब लोग मालदार लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अभी तो शायर कहता है मैं खुश हूँ गरीबी पे तो सबब ये है, मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है, मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करते हैं, मेरे हुजूर गरीबों से प्यार करते हैं। और एक जुमला या और कह दूं तो बेजाना होगा, बल्कि आप सब मचल जाएंगे। अरे दुनिया वाले अपनी अमीरी पे नाज करते हैं, करते रहो, अपनी दौलत पे फख्र करते हैं, करते रहो, अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, करते रहो। लेकिन वो दुनिया के अमीरों सारे के सारे कान खोल के सुन लो, किसी अमीर के पास अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास अजमेर की धरती पर गरीब नवाज है। गरीबों के पास गरीब नवाज है। कभी तो आला हज़रत के भाई फरमाते ख्वाजा हिंद को दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी भी मांगने वाला तेरा। बाकी जल्दी से पूरा करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। आइए जब इतना कहा इसने आपकी अम्मी को बुलाया, आपकी खाला को बुलाया जो इसकी बीबी थी, और कहने लगा अरे इसको समझा लो, घर से निकाल दूंगा, घर की ठोकरें मार खाता फिरता रहेगा, नबी का कलमा पढ़ता, मेरे दुश्मन मोहम्मद का कलमा पढ़ता है। माँ ने कहा तो मेरा सुना कर बेटा, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था बेटा, तेरा बाप दुनिया से छोड़कर हमें चला गया, तेरे खानों ने हमें सहारा दिया था बेटा, अपने मकान में रखा था बेटा, अब तू जो है इनकी बात मान ले, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा अबू के शाफा की आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगे ठीक मानता हूँ, लेकिन अब सुन ले मेरी एक शर्त है, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है, शर्त ये है कि तू पहले मेरे महबूब के चेहरे को देखकर आएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तन्हा नहीं आएगी, मेरी खाला को भी साथ लेकर जाएगी, सुभान अल्लाह। अगर तुम दोनों मेरे नबी के चेहरे को देखने के बाद में कह दो कि मोहम्मद का कलमा
कलमा पढ़ना छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा, वापसी छोड़ दूंगा। आहा क्या अकीदा था सहाबा का, क्या मोहब्बत थी, क्या अकीदा था। अब ये इसने इतना सुना, इसके खालू ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अरे इसकी माँ ना मानेगी, मेरी बीवी तो मेरी है, वो तो जरूर मानेगी। कहा इसने सारी रात समझाने लगा मोहम्मद की हर चीज तारीफ ना करना, बुराई करना, बुराई करना, जहाँ तक हो सके बुराई करना, कितनी अच्छी बातें लगे लेकिन उसकी बातों को बुराई बताना, इसे जो है अपनी लाइन में करना है। आदमी लोग सोचते ना अपनी लाइन में आ जाए, अपने लाइन में आ जाए, अरे हम नबी वाले हैं, किसी सूरत नहीं बदल सकते, हम अपने ईमानों को नहीं देखते, ये दिल फसाने मुस्तफा का में पिट चुके हैं। अभी वो कोई माई का हाथ कीमत देख के खरीद नहीं सकता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी ये आती है नबी के शहर मदीना में, नबी के चेहरे को देखना और देखने के बाद में वापस आती है। खालू बा खुशी इंतजार कर रहा था, ये तो मेरी सिखाई पढ़ाई है, जैसा मैंने कहा वैसा ही बोलेंगी। लेकिन इधर हजरत अबू किशाबा सजदे में दुआ कर रहे थे, मौला अरे रास्ता दिखाना मेरा काम था, और अपने नबी की उनके दिल में मोहब्बत डालना काम है, उन्हें कलिमाए शहादत पढ़ाना ये अब मेरा काम है। वापस आती है कि हम के कहता है जल्दी बताओ मोहम्मद बुरा है, तो इसकी माँ कहती है हजरत अबू किशाबा की, अरे सुन लो, अरे अब तुम चाहे घर से निकालो या रखो, चाहे तुम हमारा कारोबार है कि नहीं है, चाहे हम दर की ठोकरे खाते फिरते रहे, लेकिन मेरे बेटे ने गलत नहीं किया है। जिसका चेहरा इतना हसीन व जमील है, उस नबी वो नबी झूठा नहीं हो सकता। अरे वो नबी का मजहब इस्लाम भी सच्चा, उस नबी का रब्बे जुल जलाल भी सच्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अबू किशाफा ने कहा खाला अब आप बताइए, तो ये सोचने लगे तो मेरी बीवी मेरी तरफ बोलेगी, कहा खाला आप बताइए, कहा मैं बताऊं बेटा तो सुन ले, तेरी माँ ने तो यहाँ आकर कलिमा पढ़ा है और मुसलमान हुई है, लेकिन मेरी सुन ले, जब मैं नबी की बारगाह में गई, मेरे नबी और तेरे नबी, अब वो कहती मेरे नबी और तेरे नबी जो है खिताब कर रहे थे, अपने सहाबा को दर्श दे रहे थे, तो उनके दंदान यानी दांत मुबारक से ऐसा नूर निकल रहा था, नूर निकल रहा था, नूर निकल रहा था, जिसे देख करके मैंने उसी महफिल में कलमाए तजब पढ़ लिया और मैं मुसलमान हो रही। कभी तो शायरी कहता है नबी ये आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे भूतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा, उमर को गुस्से में चूर अपने चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फे करम हुई तो उन्हें भी कलमा पढ़ा।